Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. And moreover, this is a video after Diwali and Bhai Dooj. I hope that you must have celebrated your Diwali and Bhai Dooj very enthusiastically. But don't forget that now it's time to do our chapter and back to our normal routine, that is studying regularly and do the work on time. Now, we were discussing about chapter Forest Our Lifeline and we have completed the chapter. So, it's time to do our NCRT exercise of this chapter. So, the very first question is explain how animals dwelling in the forest help it to grow and regenerate. मीन्स कि एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को ग्रो कराने में और रीजनरेशन में. द फर्स्ट ऑफ ऑल, द एनिमल्स हेल्प्स इन डिस्पर्शन ऑफ सीड्स. प्लांट सीड्स को डिस्पोज करने में हेल्प करते हैं. जो एनिमल डंग प्रोवाइड होता है, जो एनिमल डंग होता है वो जब डिकम्पोज होता है, डिके होता है, देन इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. एंड नेक्स्ट इज मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है आपके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं जिससे वो ह्यूमस प्रोवाइड होती है. सो इन दीज थ्री फॉर्म्स basically your nutrients are being given to the forest and it help it to grow again and regenerate. Now the very next question is explain how forests prevent floods. Forest कैसे floods को prevent करता है. The first आपको पता है that it does not allow rain water to fall directly on the earth and therefore plants hold the water firmly. जब वो वाटर को होल्ड करेंगे तो फ्लड्स अपने आप रुक जाएगी, which helps in preventing floods. Now the next question is what are decomposers? Name any two of them. What do they do in the forest? डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कोई भी दो एग्जाम्पल्स एंड देन वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं किसको, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. किस में, ह्यूमस की फॉर्म में, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स. एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड फंगाई. एंड व्हाट दे आर डूइंग, how they are helping the forest, that is they help in recycling of nutrients by decomposing dead plants and animals. I hope question number 3 is clear to you. Now the next is question number 4. Explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. फॉरेस्ट कैसे हेल्प करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने में एटमॉस्फेयर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट्स है, कंज्यूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, देन रिलीज करेंगे ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. देयरफॉर यहाँ पे आपका फॉरेस्ट ने हेल्प किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को. नेक्स्ट, दिस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. नाउ अगर हम इन डिटेल पढ़ें, when we have discussed the first chapter, so I have told you that with the help of stomata, what they are doing is they are taking in carbon dioxide and releasing out oxygen, that is your photosynthesis. But at night what is happening on that, they are taking in oxygen and releasing out carbon dioxide. So in this way they are helping in balancing the uh, natural balancing the oxygen and carbon dioxide cycle in the atmosphere. Now the next question is question number 5. Explain why there is no waste in the forest. फॉरेस्ट में कोई वेस्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, बिकॉज वहाँ पे जो भी वेस्ट जनरेट होता है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो ईजिली नेचर में ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है. ओके, सो दैट मीन्स कि जब यहाँ पे नेचर के थ्रू डिकम्पोज हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका नेचर उसे डिकम्पोज करा के किस में कन्वर्ट कराएगी, ह्यूमस की फॉर्म में. एंड वो ह्यूमस क्या करेगा, सॉइल को वापस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा एंड अल्टीमेटली वो रीग्रो कर जाएंगे. इसीलिए फॉरेस्ट में कभी भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता. सो देर इज़ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट बिकॉज वेस्ट created is biodegradable, which gets converted to humus by the action of microorganisms. I hope question number 5 is clear to you. Now the question number 6. लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेडिसन, स्पाइसेस, वुड, पेपर एंड गम. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स. द करेक्ट आंसर इज गिवन इन द ब्लैंक. द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनीबीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट, अ फॉरेस्ट इज अ प्योरीफायर ऑफ एयर एंड वाटर. हर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट, आपको पता है ये बात.
नेक्स्ट, डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट एनरिच द सॉइल, सॉइल की ह्यूमस कंटेंट को इंक्रीज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस. जो आपका कंडीशंस हैं फॉरेस्ट में, जो मतलब फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं बट हमसे दूर हैं, बट हमें उनके बारे में क्यों वरी करना चाहिए, क्यों हमें उनके लिए कंसर्न दिखाना चाहिए. रीज़न बीइंग वी आर कटिंग फॉरेस्ट फॉर आवर लग्जूरियस लाइफ. सो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग ऑन कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज हो रहा है एंड इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. सो अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट इन एन increase in carbon dioxide content in the atmosphere. This results in global warming. Next, forest कट हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो सॉइल इरोजन इंक्रीज हो रहा है. सो अल्टीमेटली वो फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है एंड वो हमारे लिए भी हार्मफुल है. नाउ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन. नेक्स्ट, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, वाइल्ड लाइफ नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ नहीं होंगे तो अल्टीमेटली बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, फूड चेन फूड वेब खराब हो जाएगी आपकी. सो इसकी वजह से फॉरेस्ट कट करने की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है. और फॉरेस्ट कट क्यों नहीं, क्योंकि ह्यूमन नीड्स ग्रीड में कन्वर्ट हो रही है. सो अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट द लाइव्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. नेक्स्ट, फ्लड इंक्रीज हो जाएगा आपका. एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड टू फ्लडिंग मोर ऑफन. नेक्स्ट, फॉरेस्ट लैंड खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली सब कुछ डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा. मीन्स जब फॉरेस्ट नहीं होगा सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल को कोई होल्ड करने वाला नहीं होगा एंड अल्टीमेटली राजस्थान की तरह सारी लैंड में डेजर्ट हो जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. सो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट land will turn barren, which is called desertification. Okay, now the next is question number 9. Explain why there is a need of variety of animals and plants in forest. क्यों चाहिए बहुत सारे plants and animals? So that forest can grow on their own. Secondly, agar if you have variety of plants and animals, it lead to balance between food chain and food web, and ultimately decomposers will come in nature and then it decomposes the nutrient content and ultimately humus content will increase and therefore the forest will regrow. So dekha how the cycle is being balanced out. So therefore we need variety of plants and animals. So variety of plants and animals in the forest helps plants to regenerate and regrow. More excellent range of plants supports herbivores, which in turn serves as food for carnivores. Decomposers turn dead animals and plants into humus, thereby maintaining nutrient recycling. This wide variety makes forest a dynamic living entity. Okay, now the next is figure 17.15. The artist has forgotten to put the labels. यहाँ पे कुछ में लेबलिंग नहीं हुई है, आपको करेक्ट में लेबलिंग करके देनी है. सो यू विल डू ओनली द करेक्ट वन. ओके, आप फिगर 17.15 नहीं बनाएंगे, आप सॉल्यूशन वाली फिगर बनाएंगे इन विच यू कैन सी एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, रेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड is going in the plants, then animals, then soil, then root, water table and groundwater. So जहाँ पे लेबलिंग हुई है आप सिर्फ वो वाला डायग्राम बनाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट. कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? गम, वैक्स, प्लाईवुड और कैरोसिन. ऑब्वियसली आपका कैरोसिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो कैरोसिन इज नॉट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट, द फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. क्या प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट के ऊपर एक फॉरेस्ट में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते? करते हैं. दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन गलत है, मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल. फॉरेस्ट वाटर साइकिल और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है? डेफिनेटली करता है. सॉयल हेल्प फॉरेस्ट टू रीग्रो एंड रीजनरेट. सॉयल क्या हेल्प करती है फॉरेस्ट को ग्रो कराने में और रीजनरेट कराने में? डेफिनेटली करती है. सो व्हाट वी हैव सीन इज कि सेकेंड ऑप्शन, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Now the next question is question number 13. Microorganisms act upon the dead plants to produce. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए? सैंड, मशरूम, ह्यूमस और वुड. ऑब्वियसली सैंड एंड वुड तो नहीं आएगा. मशरूम्स आपका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आता है.
सो वो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड नहीं करते. सो किस पे क्या प्रोड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? आपका ह्यूमस. सो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमस. This is the last question of this exercise. I hope the answers are clear to you, and if you have any doubt, you can contact me. But class 7, please submit your work regularly. That's all for today. Thank you and have a nice day.